Hello friends, welcome to the second part of this video. We were discussing the 2012 GATE Architecture and Planning question paper. So let's start with the first question of this video. A painting in a living room needs to be lighted at 250 lux. If the light is incident normally on the painting from a distance of 6 meter, then the intensity of light source required in candela unit is, so the correct answer of this question is option number D, 9000. Question number 27 है, total land area for a plotted housing development project is 50 hectare, of which area under community facilities, common open spaces and roads are 9%, 10% and 16% respectively. Total number of saleable plots of 250 square meter each will be. So let's calculate this. First we will write what is given in the question. First is site area, which is equals to 50 hectare equals to 50 square meter, because 1 hectare equals to 10,000 square meter. Now area under different facilities, which is 9% plus 10% plus 16% of roads. So this will come as 35% in total. Now we will take out the area of 35% from 50 hectare. So this will come as 30% of 50. So 1 and 2 times, then it will come as 17.4 hectare, which is equals to 174,000 hectare. Now we will take out the 65% of this 5 lakh square meter, which is saleable plot area. So 65% equals to 55 lakh divided by minus 174,000. Now this is the area that can be sold through plotting. Now we will find the number of plots. So number of plots. So as given in the question, single unit plot has an area of 250 square meter. So we just divide this 336,000 by 250, and this will give our answer. So after calculating this, the answer will be 1300 units. So the correct answer of this question is option number B, 1300. Question number 28 is, a 6 meter long beam is fixed at its left end and is free at its right end if the concentrated load of 25 kilonewton acts downward at 4 meter from the left end, then the bending moment at the left end is. So the correct answer of this is option number D, 100. दोस्तों अगर मैं सारे ही कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. So I will cover all the mathematical questions in a single video. So
it will be easier for you to understand. Now move to the question number 29. A classroom of 12 meter into 12 meter into 4 meter requires 3 air changes per hour at an air velocity of 2 meter per second. The necessary duct cross section in meter square is. So the correct answer of this is option number A, 0.5 meter square. Next question is, if the original cost of a building is rupees 25 lakh and its scrap value after 55 years is 25,000, then its annual depreciation in rupees using straight line method is. So I will give a formula for this. You will find the answer of this question. So scrap value equals to cost of asset minus depreciation multiplied by its useful life. This is formula 1, and the another formula is rate of depreciation equals to cost of asset minus scrap value divided by the time. So from these two formula you will calculate this. I will simply tell the answer of this question, which is option number C, 45,000. The next is, for a pin jointed steel truss system, which of the following statement is true? So the correct answer of this question is option number B. Forces in member at any align in appropriate combination of tension and compression to develop movement resisting capacity. This is the only correct option. Other three options are false. Question number 32 is, match the books in group 1 with their author in group 2. तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको 2 या 3 ऑथर्स के नाम भी पता है, if you know 2 and 3 correct options, then you can find the right answer for this type of questions. तो दोस्तों जैसे फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर, ये बुक काफ़ी कॉमन है. तो इसका जो आर्किटेक्ट है, इसका जो ऑथर है वो थे फ्रांसिस डी.के. चिंग. सो Q4. और जो ऑप्शन नंबर S है, द इमेज ऑफ द सिटी, ये भी काफ़ी कॉमन बुक है और इसके ऑथर थे केविन लिंच. सो S2. अब हम देखते हैं कि ये जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं ये किस गिवन ऑप्शन में सही है. तो S2 इसमें भी है, Q4 इसमें भी है. सो इस तरीके से हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया. और जो बुक है द डेथ ऑफ लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटी, ये दिया था जेन जेकब ने. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, P5, विच इज़ स्पेस टाइम एंड आर्किटेक्चर के ऑथर थे जिडॉन सेफ्रिस. फॉर्म स्पेस ऑर्डर के ऑथर थे फ्रांसिस डी.के. चिंग. द डेथ ऑफ लाइफ
द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज़ के ऑथर थे जेन जेकब। जेन जेकब ने एक कंसेप्ट दिया था आइज़ ऑन द स्ट्रीट, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन स्टडी अबाउट इट। एंड जो लास्ट बुक थी द इमेज ऑफ द सिटी, ये केविन लिंच के द्वारा लिखी थी और इसमें उन्होंने 5 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया था। वो 5 एलिमेंट्स थे पाथ, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, नोड्स और एजेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 33 में जो फर्स्ट है JNNURM, इसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिजुविनेशन मिशन, और ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और स्लम अपग्रेडेशन के लिए हुआ था। सो ये हो जाएगा P2 इंदिरा आवास योजना, विच इज़ housing scheme for lower income group. So it is Q, housing for BPL family. Now PURA, its full form is provision of urban amenities in rural areas. So PURA is 1. Then Narega is related to rural employment, so it will come as S. So the correct answer of this will be R1, P2, Q5 and S3, which is option number A. The next question is match the concept in group 1 with personalities in group 2. तो दोस्तों जो लीनियर सिटी का कंसेप्ट था वो दिया था सोरिया वायमाटा ने। रेडियंट सिटी का जो कंसेप्ट था वो दिया था ली कर्बूजियर ने। गार्डन सिटी जो कि काफ़ी फेमस है, इसके आर्किटेक्ट थे एवेंजर हॉवर्ड। और जो आर्कोलॉजी कंसेप्ट था ये दिया था पाओलो सोलेरी ने। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी Q1, P4, option number C. The next question is question number 35. Match the plan drawings in group 1 with their respective scales in group 2. So as per URDFI, इसमें हर एक प्लान्स की स्केल मेंशन है, सो यू कैन रिफ़र दैट ऑल्सो। और इस क्वेश्चन को देखते हैं तो जो साइट प्लान है वो 1:500 के स्केल में बनाया जाता है। जो पर्सपेक्टिव प्लान है वो जनरली 1:10 लाख के स्केल में, जो मास्टर प्लान है उसे हम 1:20,000 के स्केल में बनाते हैं, और जो जोनल प्लान है उसका स्केल जनरली 1:4,000 होता है। So the correct answer of this question is option number D, P3, Q2, R4 and S1. The next question is match the terminologies of group 1 with their corresponding meaning in group 2s. दोस्तों ये जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं ये नॉर्थ इंडिया टेम्पल और साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से ली गई हैं। नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को हम नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, और जो साउथ इंडियन है उसे द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं।
तो पहले हम देखते हैं नॉर्थ इंडियन, दैट इज़ नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये जो नगाड़ा स्टाइल है इसमें काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का यूज़ होता है। जिसके फर्स्ट में एक एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस पोर्च। देन सेकंड में मंडपा होते हैं, विच इज़ हॉल्स विथ कॉलम्स। इसके बाद एक ग्रेट हॉल होता है। देन आता है वेस्टिब्यूट, और लास्ट में आता है अमलका। इसकी लेबलिंग कर देते हैं। दैट इज अमलका, वेस्टिब्यूट, ग्रेट मंडपा या ग्रेट हॉल, जिसे महामंडप भी बोलते हैं। ये होता है हॉल, विच इज़ मंडप, और फर्स्ट होता है एंट्रेंस, जिसे अर्धमंडप बोलते हैं। अर्धमंडप। अब इसमें कुछ कार्विंग्स होती हैं। कुछ सेकेंडरी टावर्स होते हैं। इन सेकेंडरी टावर्स को बोलते हैं उरुशिंगा। और जो अमलका होता है इसमें गॉड रेस्ट करते हैं, जिसे गर्भागृह भी बोलते हैं, और इनर सेंक्टम। अब देखते हैं द्रविडियन और साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को। तो इसमें स्टार्ट में होता है गोपुरम, विच इज़ एन एंट्रेंस गेट। देन कुछ स्कल्पचर्स होते हैं। फिर आता है मंडप, विच इज़ अ काइंड ऑफ हॉल with lots of pillars. Then आता है महामंडप, which is again a series of columns. But then आता है main डोम, और इसे बोलते हैं इनर सेंक्टम, जहाँ पे गॉड रेस्ट करते हैं। इनर सेंक्टम ऑल्सो गर्भागृह। इसके ऊपर में शिखर होता है, और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं विमाना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, जो अंतराला होता है वो होता है एंटी चेम्बर। जो मंडप होता है वो मेनली होता है पिलर सेंचुरीज। गोपुरम इज गेटवे, and Prasada is palace hall. So the correct answer of this question is option number B. Now move to the next question, that is match the standard safety color codes of group 1 with their corresponding uses in group 2.
सो फ्रेंड्स, जो ब्लू कलर होता है वो जनरली रिसाइकल वेस्ट के लिए होता है। जो ग्रीन होता है वो बायोडिग्रेडेबल बेस्ड। रेड इज़ रिलेटेड टू फ्लेमेबल और फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, and yellow is related to stumbling against hazards. So the correct answer of this question is option number A, P3, Q1, R2 and S4. You can also see in this picture there is red represent to fire protection, orange is related to, these are the safety signs and its color code by ANSI. Question number 38 is match the alignment of rotating prism in wall section in group 1 with their corresponding acoustic function in group 2. तो दोस्तों, अगर हम किसी acoustic पैनल को अलग अलग एंगल से लगाएं किसी वॉल पे, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। सपोज दिस इज़ दी बेस, तो इस क्वेश्चन में मेनली ये पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में हमें ये मैच करना है कि कौन सा एंगल से किस तरह का एकॉस्टिक फंक्शन हमें मिलेगा। तो जो फर्स्ट पिक्चर है ये हमें देगा P4 विच इज़ स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। जो Q वाला इमेज है ये हमें मॉडरेट डिफ्यूजन देगा। R का जो इमेज है ये हमें मॉडरेट एब्जॉर्प्शन देगा। और जो लास्ट इमेज है वो हमें स्पेक्युलर डिफ्यूजन देगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, P4, Q1, R2 and S3. The next question is match the project in group 1 with their architect in group 2. तो दोस्तों, जो फर्स्ट बिल्डिंग है मिलवाकू आर्ट म्यूज़ियम, और ये यूएस में है। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ये बिल्डिंग एक न्यू फ्यूचरिस्टिक स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है और इसे हाईटेक आर्किटेक्चर से भी रिलेट करते हैं। इसे डिज़ाइन किया था सैंटियागो कैलाट्रावा ने। तो P इज़ रिलेटेड टू 5। सेकेंड जो बिल्डिंग है किम्बल्ड आर्ट म्यूज़ियम फोर्ट वर्थ, ये टेक्सास में है जो कि यूएस का एक पार्ट है। इसे डिज़ाइन किया था लुइस आई खान ने। सो आई थिंक देयर इज़ सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। लुइस आई खान ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। थर्ड बिल्डिंग जो दी गई है गेटी सेंटर लॉस एंजलिस, ये डिज़ाइन किया था रिचर्ड मेयर ने। ये बिल्डिंग लॉस एंजलिस यूएस में है। जो रिचर्ड मेयर है इन्हें 1984 में प्रिट्ज़गर मिला था। और जो फ्रीडम टावर है जिसे वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहते हैं, इसे डिज़ाइन किया था डैनियल लिबेस्किन ने। दोस्तों, इन्हीं आर्किटेक्ट की अगर हम कुछ फेमस बिल्डिंग्स को देखते हैं तो जो लुइस आई खान है इन्होंने शेर बांग्ला स्टेडियम बनाया है जो कि ढाका में है। येल यूनिवर्सिटी भी डिज़ाइन की है। फिलिप्स सेंटर एकेडमी लाइब्रेरी भी डिज़ाइन किया है। और सॉल्व इंस्टीट्यूट इनका फेमस बिल्डिंग है। और इंडिया में इनकी मोस्ट फेमस बिल्डिंग है IIM अहमदाबाद। रेसिडेंशियल।
डैनियल लेबेस्किन का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है जूइश म्यूज़ियम, बर्लिन, और इम्पीरियल वॉर म्यूज़ियम विच इज़ इन UK। टडाओ एंडो के फेमस वर्क हैं चर्च ऑफ द लाइट और चर्च ऑन द वाटर। सैंटियागो कैलाट्रावा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डिज़ाइन किया था, जो कि न्यूयॉर्क में। टर्निंग टॉर्सो, ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो माल्मो में था। एथेंस ओलंपिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये डिज़ाइन किया था। और एलामिलो ब्रिज, जो कि एक केबल ब्रिज है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से 2012 के आर्किटेक्चर और प्लानिंग के पेपर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।